यहाँ से था with reference to casual workers employed in India, the correct statement: all casual workers are entitled for employees evident fund coverage. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. And government can, by a notification, specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. ठीक है. With effect from 1st April 2023, the minimum wage for unskilled labor in Uttar Pradesh has been fixed कितना 10,089 रुपीज पर मंथ. ठीक है. अब ये 1 अप्रैल 2023 मतलब हो सकता है पूछ ले या पूछा गया रहो. द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी ऑफ इंडिया कितना है? बिटवीन 25 to 30%. ठीक है. एडवांस एस्टिमेट भी लगभग 28.3% दिया था. What was the industrial growth rate of India during 2022-23? First estimate, advanced estimate with बेस ईयर कितना था? 2011-12. अभी भी बेस ईयर लगभग चीज़ों का 2011-12 ही चल रहा है. तो इसमें था 4.1%. अब ये सब करंट अफेयर्स है, मतलब अब ये 2022-23 का है, तो इस समय 23-24 में पूछ सकते हैं. Assertion रीजन क्या है? There was an increase in industrial production during 1999 or 2000. The period witnessed a stable exchange rate and improved business sentiment. ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Among the manufacturing, mining, electricity and construction activities, it has not been included in the Industrial Production Index of India. Construction, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स होता है उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं इंक्लूड है. This is not included in Index of Industrial Production, which is the measure of industrial activities in the Indian economy, gas and water supply. अच्छा, ठीक है, ऑप्शंस में ये रहा होगा. This agency releases the Index of Industrial Production to measure industrial performance in India. National Statistical Office, NSO. पहले दो थे, अब उनको मर्ज करके फिर NSO बनाया गया था. फिर the series for the Index of Industrial Production, which was released by Government of India on 10th June 2011, has changed base year from 1993-94 to 2004-2005. अच्छा, फिर उसके बाद ये बेस ईयर उस समय 2004-5 किया गया था, अब चेंज करके 2011 किया. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्शन करंट बेस ईयर 2011. ठीक है. In India, in the overall index of industrial production, the indices of 8 core industries have a combined weight of 40.27%. These 8 core industries are, वो 8 core industries कौन कौन सी हैं? सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट और कोल, क्रूड ऑयल, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है पता है? कोई आइडिया है? शायद स्टील या इलेक्ट्रिसिटी का है, जहाँ तक मुझे याद है. इन दोनों में से किसी का एक का ज़्यादा है. It is not included in 8 core sectors in India. Chemicals, ठीक है. In index of 8 core industries, these are given the highest weight. देखो रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा इसमें दिया है 28.0376%, इलेक्ट्रिसिटी 19%, 98.853%, स्टील 17.916. अब ये पता नहीं इस साल का है तो देख अच्छी बात है, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. During the year 2021-22, this product recorded the highest growth rate in India. Cement. ठीक है, 2021-22 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसकी थी? सीमेंट की थी. करेक्ट स्टेटमेंट है, coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. Now coal blocks are allocated by way of public auction. At present, India is importing coal to meet the shortage of domestic supply. As India is not self-sufficient in coal production. इंडिया करीब 85% कोल प्रोड्यूस करता है और 15% मंगाता है. ठीक है, मतलब अप्रोक्स डेटा है. ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन ठीक ठाक हो रहा है. Among the large industry, small scale industry, micro industry, medium size industry and construction industry, including manufacturing sector, construction industry. In this year, the latest classification of MSME was done. अब 2020. ठीक है, अब उसमें था ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसाइड किया गया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम कौन से हैं. Correct statement about revision in classification of MSME in 2020 are:
Government of India announced revision MSME definition. The change in this definition फालतू चीज है. Explanation बोल रहा है, ये नहीं बता रहा कि क्या चेंज किया गया. In industrial policy of 1991, the investment amount for small scale industries approved for general and auxiliary units was 60 lakh 75 lakh. ठीक है. In India at present, business with investment up to 1 crore and turnover up to 5 crore are known as micro enterprise. ठीक है. ये शायद मतलब 5 का डिफरेंस है शायद. ये 1 से फिर 5 फिर 10 ऐसे करके है और ये 5 25 ऐसे करके शायद. एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है. अगर इसमें दिया होगा तो अच्छी बात है, वरना देख लेंगे उसको अलग से. This partly defines the micro enterprise in India. Investment in plant and machinery of equipment not more than 1 crore. ठीक है. किसका पूछा? माइक्रो. ये भी माइक्रो का ही था ऊपर भी. माइक्रो एंटरप्राइज. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2006. एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट कब पास हुआ था? The limit of capital investment for small scale industries as per new industrial policy 1991 was 60 lakh. ठीक है. At present, investment in plant and machinery in small scale manufacturing unit should be not more than 10 crore. ठीक है. ये स्मॉल का बता रहा है. अभी हमने माइक्रो का देखा था. माइक्रो में कितना था? 5 इन्वेस्टमेंट. ठीक है. टर्नओवर 5 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है. ठीक है. और यहाँ पर 10 करोड़ है इन्वेस्टमेंट. ठीक है. At present, micro, small and medium enterprises Development Act 2006, medium enterprises in manufacturing sector were defined as those with investment of 5 crore to 10 crore. At present, this is the prescribed investment limit for medium enterprise as per revision in classification of MSME, more than 10 crore but not more than 50 crore. ठीक है. इसका मीडियम का. ठीक है. अगर एमएसएमई डिफिनेशन डायरेक्ट देख लें तब शायद ज़्यादा क्लियर हो. देखो, मेरे ख्याल से यही लेटेस्ट होगा. माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए. और इसमें क्या है? माइक्रो. ठीक है. माइक्रो के लिए एक इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़. स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़. मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 20 करोड़. ठीक है. और एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? माइक्रो के लिए 5 करोड़ है, स्मॉल के लिए 50 करोड़ है, मीडियम के लिए 100 करोड़ है. ठीक है. खत्म कहानी. फालतू का गेस करने से अच्छा सीधे सीधे डिफिनेशन देख लो. इसमें भी वही है. हाँ, इसमें वही है. अपडेटेड डिफिनेशन थी ये. ठीक है. अपडेटेड डिफिनेशन में 250 देखो 5 50 250 ऐसे चल रहा है. उसमें 1 10 50 ऐसे चल रहा है. ठीक है. अलग अलग क्यों दे रहा है? गवर्नमेंट वाला कहाँ है भाई? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उनका दोनों का अलग अलग है. ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए था और ये सर्विस सेक्टर के लिए है. ठीक है. सबने अलग अलग डाल रखा है. चलो कोई नहीं. इसकी जो टेबल है वो देख लेंगे जो गवर्नमेंट पीआईबी में पब्लिश करती है, वो ज़्यादा सही रहेगी. ठीक है. ज़्यादा ऑथेंटिक रहती है वो. इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइज प्रोवाइड फॉर द एक्ट पास्ड इन 2006 was investment limit for micro enterprise 25 lakh for manufacturing sector and 10 lakh for service sector. ठीक है. सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग मतलब लिमिट है. ठीक है. This state has the largest number of registered factories, Tamil Nadu. Small scale industries in most cases not as efficient and competitive as the large scale one, yet the government provide preferential treatment and reservation in range of product to the small firm because small scale industries provide higher employment on per unit capital deployment basis and promote a regional dispersion of industries and economic activities. ठीक है. ये मतलब visible नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है, पढ़ने में आ जा रहा है थोड़ा बहुत. For a developing country like India, small scale and cottage industries should be encouraged primarily because they
जनरेट लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों प्रमोट की जाती हैं? क्योंकि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं, क्योंकि उनमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी तो उनमें मैकेनाइजेशन भी होगा। जब मैकेनाइजेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट कटिंग होगी, ह्यूमन मतलब कम लेबर का यूज़ होगा। इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो उतना ज़्यादा मैकेनाइजेशन नहीं अफोर्ड कर पाती हैं, उनको ज़्यादा है जो ह्यूमन लेबर है उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं ओवरऑल। ठीक, ओवरऑल की बात हो रही है। Small scale and cottage industries are important because they provide more employment. देखा, among the textile, paper, handloom, jute industries, the most important small scale industry in India handloom। ठीक है, हमारे यहाँ जो कपड़ा बनाने का उद्योग है या कपड़ा उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं बेसिकली। ठीक है, और काफी तो इसमें जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं, अनऑर्गेनाइज है। The largest industry of Uttar Pradesh in terms of employment, handloom। From this sector, largest quantity of cotton textile is produced in country, powerloom। These are the problems of small scale industries: lack of capital, lack of marketing experience, lack of raw materials। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्ट्राइक, क्योंकि उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं होती है तो स्ट्राइक करना उनको नहीं समझ में आता। ज़्यादातर नखरे जो बड़े इंडस्ट्रीज के होते हैं वहां पर यूनियन बनती है फिर वो स्ट्राइक करते हैं। छोटे में अगर मतलब 8-10 लोगों को एम्प्लॉय किया, किसी को जाना जाना है वो जा सकता है, दूसरे को ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो वहाँ ये समस्या नहीं आती। द हेड ऑफिस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, सिडबी का जो हेड ऑफिस है लखनऊ में। करेक्टली मैच करना है मतलब। हाँ, ये मतलब इसमें बताया कि कमिटी और कब बना है। नायक कमिटी 1991, आबिद हुसैन कमिटी 1995, एसएस कोहली कमिटी 2000, कार्वे कमिटी 1955। ओके, नायक कमिटी इज रिलेटेड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। दिस कमिटी रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडस्ट्रीज। आबिद हुसैन कमिटी, अभी जो कमिटीज ऊपर पड़ी हैं उन्हीं उन्हीं के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन भी है। ठीक है, Abid Hussain Committee was related to small and medium industries. The contribution of India's manufacturing MSME in the country's total manufacturing GVO at current prices is around 33%। इवन हमारा जो एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सटर्नल एक्सपोर्ट है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट केसेस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा एमएसएमई से जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एमएसएमई से जाता है। Among the sugar, cotton, textile, jute and cement, this sector got high rate of growth in cooperative unit, cotton textile। In India, maximum number of workers are employed in textiles industry. In this industry, provide the maximum employment in India textile। ठीक है, सब textiles ही है। In this state has the largest number of cotton textile mills, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु किस चीज में, एक तो हमने देखा लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल, और अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज भी वहीं पर रजिस्टर्ड है। In India, the highest production of mill-made cotton cloth comes from Gujarat. The oldest large-scale industry of India is cotton textile. The first industry to develop in India was cottage industry। अब इसमें cottage industry ठीक है, ये कौन सी This industry is regarded as most basic for our modern civilization, iron and steel। ठीक है, this industry is in the industry for which Napa Nagar is known is newsprint paper। नापा नगर, नेपा नगर कहाँ पर है नहीं पता। नेपा नेपा नगर। हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ पर, किस चीज के लिए है? नेचुरल गैस। हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री। This statement is not correct about fertilizer industry of India। इंडिया इज सेल्फ रिलायंट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है नहीं है। क्यों? अभी आपने देखा होगा जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई तो हमारे यहाँ डीएपी वगैरह की कमी हो गई। ठीक है, फर्टिलाइजर की कमी हो गई, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए थे। दीज प्लेसेस आर और नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यमुनानगर, गुवाहाटी, बल्लारपुर।
though a few gas-based industries have already been established, good reserves of natural gas in India remain unutilized. This vast resource of natural gas can be used in the production of fertilizer. ठीक है, नेचुरल गैस की हमें जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की। ये समस्या भी आई थी क्योंकि अ, जब अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था तो फर्टिलाइजर या नेचुरल गैस वहीं से मंगाते थे ज्यादातर। ठीक है, तो दोनों की कमी हो गई थी एक साथ, बना भी नहीं सकते, मंगा भी नहीं सकते हो। द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वॉज सेटअप इन 1956। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओएनजीसी कब बना था? 1956 में। ऑयल इंडिया इज एन एंटरप्राइज इन्वॉल्व इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म भी ऑयल ही है। With reference to public sector undertaking in India, correct statement are Mineral and Metal Trading Corporation of India Limited is the largest non-oil importer of country. Project Project and Equipment Corporation of India Limited is under the Ministry of Industry. E, e, ECGC Limited, formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, provide export credit insurance support to Indian exporters. It is not related to enforcing quality control and compulsory shipment. जो ये बैंक्स होती हैं, जैसे एग्जिम बैंक हुआ, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि जो भी कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है वो डायरेक्टली दूसरी कंपनी से डील नहीं करती हैं। ठीक है, ये किसी बैंक के थ्रू डील करती हैं। ये बैंक जो है इसके एक बैंक से डील करेगा। ठीक है, ये अपना मतलब पेमेंट वगैरह करना हो वो बैंक से बैंक होता है और वो बैंक फिर इसको पे करेगी या इसके अकाउंट में पे करेगी। ठीक है, ये आपस में पेमेंट नहीं करते हैं। ये कंपनी थ्रू कंपनी आपस में पेमेंट नहीं होता, नॉर्मली वो बैंक के थ्रू करते हैं। ठीक है, ताकि कोई ऐसी समस्या ना आए। The correct statements are MMTC Limited is India's largest international trading organization. MMTC इंडिया का largest international trading organization है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड has been set up by MMTC jointly with government of Odisha. ठीक है, this is the largest trading government company of India. MMTC है Minerals and Metal Trading Corporation. MMTC. Which with reference to the functions of public sector in India, correct statement है to provide public utility resources, to build social and economic overhead capital, to ensure balanced regional and sectoral growth, to pursue egalitarian goals. ठीक है, पब्लिक सेक्टर के जो भी फायदे हैं वो सब लिखा है इसमें। फिर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया क्या क्या है? In the public sector of India, there are basic and heavy industries. All industries of public sector are non-profit oriented. Jobs are secured in industries of public sector. ठीक है, in India, the public sector is most dominant in commercial banking. ठीक है, अभी भी dominance है। Options में यही रहा होगा। फिर among the NTPC, SAIL, BHEL and TISCO, it is not a public sector undertaking. TISCO, टाटा की है ना शायद टिस्को। इट इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। लेदर फैक्ट्री ग्वालियर, अब ऑप्शंस में जो भी रहा होगा। अमंग द सेल भेल ओएनजीसी एसआर ऑयल, इट इज नॉट अ सेम कैटेगरी, यानी पब्लिक सेक्टर नहीं है एसआर ऑयल। अब इसका नाम है न्यारा एनर्जी। ठीक है, एसआर ऑयल। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट होल्डिंग इन बीपीसीएल इज 52.98%। अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। Which of the following are the public sector undertakings of Government of India? Balmer Lorry and Company Limited, Dredging Corporation of India, Educational Consultants of India Limited। ठीक है, तो पहला और तीसरा कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। पहला और तीसरा ये नहीं है। अच्छा, which among the following is the private sector? बोनगैगांव रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, एसआर ऑयल। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर है एसआर ऑयल लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज आर इन पब्लिक सेक्टर? दिग्बुई ऑयल रिफाइनरी, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, नुनमती ऑयल रिफाइनरी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी। सारे ही पब्लिक सेक्टर हैं। ठीक है, सारे पब्लिक सेक्टर हैं। HAL इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड करके है। ठीक है, HAL लखनऊ में भी है HAL। Among the MMTC
MTNL, NCL, NHPC, it is related with the field of electricity generation, NHPC, ठीक है, NTPC नहीं, हाँ NHPC है. The development of tourism and hotel industry in India is function of ITDC, Indian Tourism Development Corporation. ठीक है. In year BSNL was established in 2000. BSNL 2000 में establish किया गया था. BSNL मतलब MTNL भी इसी के साथ आसपास ही establish किया गया था. MTNL था महानगर जिलों के लिए, जो महानगर होते हैं उनके लिए, और या मेट्रोपॉलिटन के लिए, और BSNL बाकी जगहों के लिए. ठीक है. Among the BSNL, NTPC, BHEL, SBI, this is public sector enterprises has 100% equity. ठीक है. In this public sector, अच्छा गवर्नमेंट 100% इक्विटी है BSNL में अभी भी. In 2021-22, the top 3 loss-making central public sector enterprises were BSNL, ठीक है, और MTNL, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग, सारे. इसीलिए हो रहा था कि BSNL को भी प्राइवेटाइज कर दो, या MTNL को तो मर्ज कर दिया गया वैसे शायद इसके साथ, और ये होता कि प्राइवेटाइज भी कर दो, लेकिन नहीं किया अभी. द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड had planned to invest 8,000 crore for laying pipeline from विजयवाड़ा to विजयपुर. अब ये कहाँ है नहीं पता. विजयवाड़ा तो आंध्र प्रदेश में, विजयपुर पता नहीं. This now decide the oil prices in India. Oil companies देखा था हमने. The concept of Navratna is associated with selected public sector enterprises. वो नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, ये सब कैटेगरीज हैं अलग अलग कंपनी की. उनके बेस्ड ऑन उनके प्रॉफिट कितने हो रहे हैं पिछले सालों के प्रॉफिट देखकर वो तय किया जाता है. उनके अलग अलग कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी भी है. Among BHEL, IOC, CIL, oil, these enjoy महारत्ना स्टेटस. ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सारे ही महारत्ना कैटेगरी में है. BHEL ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन और CIL ऑयल इंडिया लिमिटेड. ठीक है. In this year, Bharat Heavy Electricals Limited यानी BHEL was received the status of महारत्ना कंपनी 2013. हो सकता है उस साल ये हुआ हो, इसलिए पूछ लिया. इस साल जिनको महारत्ना या कुछ ऐसा स्टेटस मिला हो, अब देख लेना, करंट अफेयर्स में रहना चाहिए, होगा. The government of India announced a Maharatna scheme for giving more autonomy and power to expand the sum of its Navratna in financial year 2010-11. ठीक है, ये महारत्ना स्टेटस वाला कब आया था? 2010-11 में. Among the Indian public sector undertaking, SAIL, BEL, ONGC, NTPC, it has not received Maharatna status. BEL, ठीक है. On August 5, 2023, Maharatna companies in India are 13. अगस्त 5, 2023, नवरत्न कंपनीज 14. अभी रिसेंट का इनका देख लेना, शायद गड़बड़ गया हो कुछ. Among the Coal India Limited, Bharat Heavy Electrical Limited, Bharat Electricals Limited, Gas Authority of India Limited, it is not included in Navratna bill. ठीक है. Bharat Electronics Limited. Among SAIL, GAIL, MTNL, the public sector undertaking included in Navratna, MTNL. This company has not accorded status of Navratna. Indian Aluminium Company Limited. ठीक है. Among aluminum companies, Nalco, Balco, Hindalco, Malco, it is not given Navratna status by Government of India. Nalco. ठीक है. The maximum amount which has provided the financial autonomy by Ministry of Heavy Electricals and Public Enterprises of Union Government to Mini Ratna category 500 crore. ठीक है. 6 more public sector undertakings have been accorded status of Mini Ratna by Government of India September 2006. This is not included amongst the Indian telephone industries. अब ये 2006 का बात है, मतलब उस टाइम के आसपास क्वेश्चन रहा होगा, तब से तो बहुत कंपनीज आ गई. The correctly matched pairs are as follows. बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कहाँ पर है? कोरबा. इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल. हीराकुंड, हीराकुड लिखा है, हीराकुड, पता नहीं हीराकुंड ही है या हीराकुड. मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, माल्को. मेट्यूर, सालेम, ये तमिलनाडु में है. और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को, रेणुकूट, यूपी में है ये. ठीक है, ये यूपी में.
The Apex Institution, uh, institution in field of industrial finance in India, uh, IDBI, ठीक है, Industrial Development Bank of India, IDBI. हेल्पलाइन उद्यमी इज मीन फॉर एमएसएमई, एमएसएमई के लिए. हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंदौर में है, ठीक है. लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इज प्रोवाइडेड इन उत्तर प्रदेश थ्रू यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ये तीन जो है एमएसएमईज को देती हैं पैसा. यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डज नॉट फाइनेंस टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्रीज. Udyog Bandhu is an organization to assist industrial units in solving time-bound establishment and investment-related problems. This region of Uttar Pradesh has developed most from industrial point of view western. ठीक है, वेस्टर्न यूपी में आप देखोगे इंडस्ट्री ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न या सेंट्रल. फिर BIFR was related to reconstruction and financing of sick unit. BIFR Mega Food Parks scheme has been initiated by the Government of India with the objective to improve infrastructure facilities for food processing. ठीक है, मेगा फूड पार्क का जो मेन एम है वो फूड प्रोसेसिंग वाला है. With this purpose of Government of India is promoting mega food parks to provide good infrastructure facilities for its food processing industry to increase the processing of perishable items and reduce wastage. दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ठीक है, सोशल एस्पेक्ट है उसका. बेसिकली पर्पस क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना ना. द companies go for business processing re-engineering with the help of technology because customers' demand and expectation are continuously increasing. IT being leveraged to provide competitive edge in products and services at lower cost. The pace of change has accelerated with liberalization of economies world over. ठीक है, ठीक है. Type of organization, important feature. Sole trader, unlimited liability, partnership, contractual relationship, cooperatives, betterment of weaker section, public limited company, large number of risk bearers. ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फीचर्स है. वेंचर कैपिटल मीन्स अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स. This statement appropriately describes the fiscal stimulus. It is an intense affirmative action of government to boost economic activity in the country. This first industrial policy of Free India was announced first 1948. इंडिया का पहला फ्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था? 1948 में. Concept of joint sector for industrial development of India was envisaged in Industrial Policy Resolution 1956. Joint sector का कब जिक्र हुआ था? The licensing policy of industrial drew strength from Industrial Act 1951. Industrial Act 1951. In India, liberal industrial policy was adopted in the year 1991. ठीक है, LPG आया था 1991 में. वही assertion है और reason है. Assertion क्या है? Many industries in India have obtained ISO 9001 and ISO 9002 certification in recent past. और there have been considerable liberalization in licensing policy of Government of India. ठीक है, दोनों करेक्ट हैं पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. According to 1991 industrial policy, the number of industries for which licensing was necessary were 18. ये पुराना क्वेश्चन है उस समय के लिए. The number of industries for which industrial licensing is required now reduced to 4. ठीक है, मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज थी जिसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, तब वो उसकी फैक्ट्री या कारखाना खुद सेटअप कर सकते थे. The policy of liberalization, privatization, globalization was announced as new economic policy by Prime Minister Narasimha Rao. और उस समय शायद फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे. The industrial policy in 1991 was criticized on number of points. This was not one of them.
नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ये उनमें से नहीं था। Industrial policy in 1991 was criticized on these points: erratic industrial growth, uh, threat from foreign competition, misplaced faith in foreign investment। ठीक है, इन तीन चीज़ों से पर क्रिटिसाइज करते थे उसको। Some time back, the government of India decided to de-license white goods industry. White goods includes items purchased for conspicuous conspicuous consumption। white goods industry, ठीक है। पर व्हाइट गुड्स मेनली उनको माना जाता है ना, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, क्योंकि वो जैसे एसी फ्रिज ये व्हाइट कलर में होते हैं ज़्यादातर, इसलिए उनको व्हाइट गुड्स कहा जाता है कई बार। ठीक है, अब ये कुछ और था। In the context of India's 5-year plan, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure began in 8th plan. The largest center of textile industry in India at present, Mumbai। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अभी सेंटर है मुंबई। A company a company declares dividend on subscribed capital. From the balance sheet of a company, it is possible to determine the size and composition of asset and liability of company। बैलेंस शीट से उसकी एसेट और लाइबिलिटी पता चल सकती है, कहाँ पैसा लिया है, कहाँ से लिया है, और कहाँ दे रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वगैरह सब। This group of this group of goods is not included in FMGC यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, कार, मोटरसाइकिल वगैरह। These group of goods are included in FMGC, FMCG, ठीक है। टॉयलेटरीज, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट। फिर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेंटर्स, पर्ल फिशिंग, टूटिकोरिन, ऑटोमोबाइल्स, पुणे, शिप बिल्डिंग, मरमगांव, और इंजीनियरिंग गुड्स, पिंजौर। This mode of privatization is most comprehensive and complete, transferring ownership and management to private sector। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन तब माना जाएगा जब आप ओनरशिप और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को ही दे दो। Assertion is an divestment is an integral part of liberalization of economy in India. The proceeds are being used according to stated policy। ठीक है, दोनों कह रहे ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है लेकिन वो सही है स्टेटमेंट। Assertion reason है government is resorting to divestment of some of the public sector units। रीजन क्या दिया है, PSUs have not generated enough employment opportunities। ठीक है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, क्यों, पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की बात ही नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को भी उसमें ठूस सकती है, ठूसी जा रही है बेसिकली, और उनको रिटेन भी कर रही है क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं। और यही उनकी लाइबिलिटी की वजह भी है, क्योंकि उनमें नौकरी जाएगी नहीं अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो। Divestment is in public enterprise stated started from which financial year, 1991-92, जब एलपीजी आया था उसी के बाद से शुरू हुआ। among भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती iron and steel plant is not located on river side भिलाई। ठीक है, भिलाई वाला शायद जंगल में है। The Bhilai steel plant has been established with the assistance of Soviet Union (USSR) की मदद से। Bhilai steel plant is a public enterprise। Rourkela steel plant was established with collaboration of Germany, West Germany। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। भिलाई स्टील प्लांट किसकी मदद से, सोवियत यूनियन की मदद से। और राउरकेला वाला ये उड़ीसा में, राउरकेला, ये भिलाई कहाँ पर है, भिलाई पता नहीं। ठीक है, राउरकेला वाला जर्मनी की मदद से, वेस्ट जर्मनी की मदद से। बोकारो स्टील प्लांट अभी इकाई हमने वाला देखा। छत्तीसगढ़ है। हाँ, छत्तीसगढ़। हाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़। हम्म, ठीक। और बोकारो स्टील प्लांट ये बोला यूएसएसआर की मदद से। ठीक है, में है ना शायद बोकारो वाला। बोकारो कहाँ, झारखंड। हाँ शायद झारखंड में है। बोकारो झारखंड में है। ठीक है, ये देखो दिया भी है।
राउरकेला जर्मनी, भिलाई यूएसएसआर, दुर्गापुर यूके और बोकारो यूएसएसआर की मदद से। ठीक है, कई बार पूछा है। अब देखो इसमें लिखा है कहाँ पर है। भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला उड़ीसा। फिर करेक्ट मैच करना है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट जजपुर, जजपुर उड़ीसा में है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। पावर प्लांट एट जामनगर गुजरात, ईसार पावर। नबीनगर पावर प्लांट बिहार में, इंडियन रेलवेज एंड एनटीपीसी लिमिटेड। और कायाकुलम पावर प्लांट एनटीपीसी केरला। ठीक है, फिर द इंडियन डायमंड इंडस्ट्रीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट सूरत। ठीक है, सूरत में कपड़ा और उसका दोनों का था ना, डायमंड का। खैर ये तो इंडियन हाँ डायमंड दोनों इंस्टीट्यूट का। के बारे में पूछा है, ये इंस्टीट्यूट है। हाँ, पर सूरत जो है कपड़े का भी अच्छा सेंटर है। फॉरेन इक्विटी होल्डिंग अलाउड इन स्मॉल स्केल सेक्टर इन 1995-96। अब ये पुराना क्वेश्चन है, 1995 का पूछ रहा है। तब 24% था, अभी तो किसी किसी में 100% भी है शायद। The center of cement industry in their states: सिक्का गुजरात, कतनी मध्य प्रदेश, चुर्क उत्तर प्रदेश, तिरुनवेली तमिलनाडु। The correctly matched list are as follows: प्लेस है और उनका इंडस्ट्रियल सेंटर है। विशाखापट्टनम में क्या है? शिप बिल्डिंग। मुरी एल्यूमिनियम। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल्स। पंकी फर्टिलाइजर। फिर सेंटर ऑफ इंडस्ट्री है एनोला, नहीं, आंवला, आंवला फर्टिलाइजर, ये बरेली में है आंवला। ठीक है, बरेली। ये पनकी वाला ये कानपुर वाला है। ये कानपुर का है। कानपुर का है। ठीक है, ये बरेली में आंवला। मोदी नगर रबर, मोदी नगर वहां पर है ना, ये गाजियाबाद वाली शायद, मोदी नगर गाजियाबाद। ठीक है, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर एक्सप्लोसिव है, हमने कहा गुटका। ठीक है, कानपुर एक्सप्लोसिव। फिर करेक्टली मैच लिस्ट आर एस फॉलोज: सिटी और इंडस्ट्री, कोयम्बटूर कॉटन टेक्सटाइल, राउरकेला आयरन स्टील, कपूरथला रेल कोचेस, बरौनी पेट्रोलियम रिफाइनिंग। फिर मैच लिस्ट करना है। सिंगरौली मध्य प्रदेश कोल से रिलेटेड है, सिंगरौली मध्य प्रदेश कोल से रिलेटेड है। अ, कजरहाट उत्तर प्रदेश में सीमेंट से रिलेटेड है, कजरहाट। और कोयली गुजरात में ऑयल से रिलेटेड है। आनंद, आनंद गुजरात में मिल्क से रिलेटेड। आनंद वैसे कहते हैं, आनंद इंग्लिश में लिखा जाता है। फिर करेक्टली मैच करना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। ठीक है, with reference to national investment fund to which divestment proceeds are routed correct statement है। Certain asset management companies are appointed and fund managers a certain proportion of annual income is used for financing select social sectors। ठीक है, these are purpose to which national renewal fund national renewal fund was set up to small industries to help workers likely to be displaced due to retrenchment in process of industrial restructuring. This is the objective of National Renewal Fund, ये to safeguard interests of workers who may be affected by technological upgradation of industry and closure of sick units। ठीक है, फिर क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड सेटअप। देखो उससे एक ही, उससे कितनी बार पूछा है। टू गिव ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग फॉर वर्कर्स अफेक्टेड बाय रिट्रेंचमेंट और वीआरएस redeployment of workers. National Renewal Fund has been established for retraining of labor। फिर उसी फंड के बारे में सोशल सिक्योरिटी with reference to golden handshake voluntary retirement scheme। golden handshake किससे रिलेटेड है? voluntary retirement scheme। Kandla, situated in Gulf of Kutch, is well known for Asia's first export processing zone. Industrial development in India to and
constrained by lack of saving to invest, lack of technology skill infrastructure, limited purchasing power among larger masses. ठीक है। क्राइसिल क्या करता है, इवेलुएट्स द क्रेडिट वर्थिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है, क्राइसिल क्रेडिट वर्दीनेस किसी भी कंपनी की चेक करता है। फिर टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, किस कॉन्टेक्स्ट में, कर्विंग ऑफ टैक्स इवेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। A labor intensive industry is one employs more hands। ठीक है। लेबर इंडस्ट्री मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब जिसमें ज़्यादा मैन वर्क करता है, ज़्यादा मैन पावर वर्क कर रहा हो, इंस्टीड ऑफ टेक्नोलॉजी और अदर थिंग्स। दिस ग्रुप इज नॉट को पार्टनर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कंज्यूमर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट को पार्टनर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया 2021-22 का है ये। Among the Punjab, Andhra Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, sugar industry is mostly developed in Uttar Pradesh. The president of Sugar Tea Control Committee, C. Rangarajan. फिर अलग अलग मैच द बेयर्स है और जगह है और किस रिलेटेड है। कतनी सीमेंट एंड लाइमस्टोन, सूरत कॉटन टेक्सटाइल्स, चुर्क सीमेंट, लुधियाना होजरी। फिर इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेंटर है जूट प्रोडक्ट्स टीतागढ़, सिल्क टेक्सटाइल बेंगलुरु, वूलन हाउसरी लुधियाना, वूलन कारपेट भदोई। ठीक है, भदोई यूपी में है, बाकी पता नहीं। लुधियाना पंजाब, बेंगलुरु कर्नाटका, टीतागढ़ नहीं पता, बंगाल में होगा। हिंडाल्को एन एल्यूमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड एट रेनकूट ओज इट्स साइड बेसिकली टू abundant सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रेनकूट में। कटनी एमपी है। कटनी एमपी है, कटनी कहाँ गया, ये एमपी है। ठीक है, हाँ, सीमेंट एंड लाइमस्टोन। चुर्क था ये, शायद यूपी था ना, चुर्क सीमेंट। Among the Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, this state enjoys ideal condition for the development of petrochemical industries. इसमें गुजरात था। Assertion reason है coastal Gujarat has been called an industrial workshop. It is dotted with manufacturing unit of textile and garments, pharmaceuticals and petrochemicals. ठीक है, दोनों ही correct statement और correct explanation भी है। Participation of laborers in management means participation in policy decision making. Among the Bhilai, Ranchi, Asansol, Durgapur, this industrial town is located on Chota Nagpur Plateau, Ranchi. Devas is famous for Devas किस लिए, printing of currency notes. These are अच्छा correctly match है। Setting up of first cotton mill 1818 near Calcutta। पहली cotton mill कब बनी थी, 1818 कलकत्ता में, कलकत्ता के पास बोल रहा है। Manufacturer of first machine made paper 1870 near Calcutta. Setting up first cement factory 1904 near Madras. Consider the following events: development of sugar industry by Indians, starting of first jute mill in Risha, production of steel in India for first time, starting of first textile mill in Bombay। तो इनका chronological order बताना है, तो इनके हिसाब से पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। ठीक है, ऐसा है सीक्वेंस। मतलब इसमें स्टील इंडिया ये सबसे लास्ट में। फिर एंटरप्राइज है और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, VSNL, टाटा, मुंद्रा सेज या एसईजेड, अदानी, CMC लिमिटेड, टाटा, IPCL, रिलायंस। ये क्या नहीं पता। The multinational companies functioning in India are Samsung, LG। ठीक है, ये कोई मतलब फालतू क्वेश्चन था। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इनका हेडक्वार्टर BMW AG जर्मनी, डेलमार AG ब्रिटेन, रेनॉल्ट SA फ्रांस और वॉक्सवैगन जर्मनी। ठीक है, assertion reason है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज fast becoming a very important field of activity in India. Software is one of the major export of country, and India has very strong base in hardware।
गलत है, सॉफ्टवेयर में हमारा स्ट्रांग है, ठीक है, हार्डवेयर में नहीं है, तो रीजन फॉल्स है, वो ट्रू है। ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वाज सेट अप ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान जनवरी 1953, ठीक है। जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है 1953, जनवरी 1953 में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, कुछ आता अपने आप। फिर क्या है, द बीड ऑफिस ऑफ खादी एंड, अच्छा हेड ऑफिस है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज यानी केवीआईसी का, कहाँ पर है, मुंबई में। ये विजिबल नहीं होगा ठीक से, पर हमें दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं। द करेक्ट मैच करना है यार, ये मतलब पढ़ने लायक नहीं है ये, ठीक है, मतलब इट इज नॉट विजिबल। बिल्कुल गवई भी कमेटी नहीं। नहीं दिख रहा ना ठीक से, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। एकदम विजिबल नहीं है प्रॉपरली। पता नहीं, गोस्वामी कमेटी है शायद, इंडस्ट्रियल सिकनेस, हाँ हाँ, ये ऐसे ही कुछ जानकी लग रहा रमन कमेटी है क्या इसके नीचे? है, ऐसे ही कुछ, जानकी रमन कमेटी, रॉब इसके ऑफ नीचे। शेयर स्कैम। और हम्म। ये कौन है, मोई बोत्रा, माइंड। ऐसे कुछ लग रही है, मोइत्रा। रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, और पता नहीं तारापुर, ये नहीं नहीं दिख रहा है, कोई फायदा नहीं आंख फाड़ने से। अ, मीरा सेन, मीरा सेन है, मीरा साहब है, हाँ डेवलपमेंट ऑफ मीरा, हैंडलूम। ये मीरा सेठ है। मीरा सेठ, अच्छा, डेवलपिंग हैंडलूम। ये ये पेज ऊपर देखना वाला पड़ेगा, ये ठीक लिखा है। है फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। अब यहाँ से थोड़ा सा विजिबल है ये। इन द स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैव गिवन असिस्टेंस मेनली टू डेवलप एमएसएमई, नहीं हाँ, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021-22 इन वर्ल्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेकंड, ये देखना पड़ेगा, मतलब ये उस साल का है तो सेकंड थी, अब इस साल का हम देखेंगे जब भी देखेंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और उनकी इंडस्ट्री, रिलायंस मुकेश अंबानी, विप्रो अजीम प्रेमजी, एयरटेल सुनील भारती मित्तल, और नैनो कार रतन टाटा। ये उस समय का ई बीज, ये उस दिन गलत हुआ था ना, ई बीज, सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट सर्विसेज, और ई कॉमर्स ट्रेड ऑन इंटरनेट। दिस इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी ऑफ इंडिया, एम जंक्शन। अब ये पता नहीं कौन सी है, अब तो कई सारी है मेरे ख्याल से। दिस इज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डीएमएफ, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। The term domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to developing solar power production in our country, with reference to the Indian Renewable Energy Development Agency या IREDA। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। तो देखें, ठीक है, इसके बाद टर्शरी सेक्टर, और ये वाला पोर्शन जो इसमें रह गया है इसको देखेंगे, अगर कहीं पे थोड़ा सा मतलब ढंग से मिलेगा तो इसको भी फिर से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने में नहीं आ रहा तो इसको नहीं करा पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।